Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The French Hub. In today's video, we are gonna begin with our chapter number 4 of Enchanté 3. So as you all know, in our previous video we completed our chapter number 3. अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग एक बार उसको भी देख कर आ जाना, ठीक है। अब चैप्टर 4 करने की बारी है हमारी। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे आज की वीडियो में। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, सो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स, ठीक है। सो चैप्टर का हमारा नाम है यून जूरने दो ला वी द मे पारो, मीन्स अ डे इन द लाइफ ऑफ माई पेरेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पर एक लड़की है इजाबेल, हु इज़ गोइंग टू टेल द स्केड्यूल ऑफ his father and her mother, basically of her parents, ठीक है। So let's see what's there in the text. Sorry. Okay, let's start with here. So यहाँ पर इजाबेल लिखती है साल्यू, je m'appelle Isabelle means hello, my name is Isabelle. Et c'est mon père means and this is my father, Monsieur Dubois means Mr. Dubois. Il travaille dans une banque means he works in the bank. Il travaille à la caisse means he works as the जो हमारा रिसेप्शन जिसको आप बोलते हो या रजिस्ट्रेशन काउंटर जिसको आप बोलते हो, फंड्स जिसको आप बोलते हो, तो उसको हम कैश कहते हैं, ठीक है। Chaque jour means each day. Il va à la banque à 9 heures means each day he goes to the bank at 9 o'clock. Voilà la journée typique de mon père means here is the typical day, yeah, typical day of my life means typical day routine of my father, ठीक है। Il se réveille à 6 heures du matin means he wakes up at 6 hours at 6 o'clock of the morning. Il va d'abord se promener avec ma mère dans un parc près de notre maison means first of all he goes for a walk with my mother in a park near to our house. Puis means then or afterwards. Il se brosse les dents means he brushes his teeth, ठीक है। Il se rase la barbe means he shaves the beard. Se rase means shave, barb means beard. Et il se lave and he takes a bath. Ensuite means afterwards. Il s'habille pour aller au travail means he dress up for going to the work. Puis il prend son petit déjeuner means then he take his breakfast. Il lit les journaux financiers means he reads financial newspapers et boit son café and drink his coffee. Il sort à 9 heures et prend le bus pour aller à la banque means he goes out, yeah, he leaves the home at 9 o'clock and takes bus to go to the bank. C'est la routine de mon père means this is the routine of my father. अब mother के पर हम आ जाते हैं. So Isabelle she says, et voilà ma mère means and here is my mother. Elle est très gentille means she's very kind. Chaque matin means each morning. Elle se réveille de bonne heure means she wakes up on good time. ठीक है, जो ऑब्वियसली मदर्स जो होती हैं वो मे बी 4:30 5 5:30 इतने बजे वेकअप कर लेती हैं, ठीक है। Elle prépare le petit déjeuner pour nous, means she prepares the breakfast for us. Puis elle va se promener avec mon père, means then she goes to have a walk with my father. Ensuite, elle prend le petit déjeuner, means and then she takes the breakfast. Des céréales avec du lait et des fruits, means some cereals with some milk and some fruits. Et elle s'habille pour aller à l'école. And she dress up herself to go to the school. Elle est institutrice means she's a teacher. Elle travaille à l'école où j'étudie means she works at the school where I study. So अभी जैसे कि आप बच्चे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कई जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनकी मदर जो है टीचर होंगी स्कूल में। यार हम भी सोचते थे, मैं भी जब छोटी थी, कि यार काश मेरी भी मदर यहाँ पर टीचर होती, मीन्स काइंड ऑफ ऐश ऐश होती थी तब तो, है ना। सो जोक्स अपार्ट, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। Elle est très sympathique avec les enfants मीन्स शी इज़ अ वेरी काइंड टू द चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है द एक्सरसाइज। आप लोग इसको खुद करोगे, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रांसलेशन. सो lisez le texte et répondez aux questions suivantes means read the text and respond to the following questions.
First question is asked, à quelle heure Monsieur Dubois se réveille-t-il? Means at what time Monsieur Dubois wakes up himself. Uh, Qu'est-ce qu'il lit le matin? And what does he read in the morning? Qu'est-ce que la mère d'Isabelle prend au petit déjeuner? Means what does the mother of Isabelle takes in the breakfast? Où les parents d'Isabelle vont-ils pour se promener? Means where does the parents of Isabelle go for having a walk? To take a walk. To have a walk. ठीक है. Next है हमारा question of one response means you have to choose the correct answer. So Monsieur Dubois travaille dans une means Monsieur Dubois works in a. So you have to choose the correct answer. Chaque matin, je dash les dents means each morning I dash the teeth. अब आप खुद सोचो क्या आ सकता है इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा moi et mon ami nous allons dash à l'école means me and my friend we go dash in the school. ठीक है. सो इसका आंसर हमारा होगा ensemble means together. Il arrive dash à l'heure means he arrives dash at the time. So he arrives always on time. So इसका आंसर आएगा toujours. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इट्स इज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप. I'm sorry for the dog barking out outside and I don't know why it is barking. अब मुझे नहीं पता क्यों बार्क कर रहा है. Sorry for the disturbance if it is causing. So faites des phrases avec means we have to frame the sentence with ensuite, chaque, toujours, alors. Ensuite means then, chaque means each, toujours means always, yeah, every day. Alors means so. So you have to form the sentences and do it. ठीक है. अब कुछ grammatical topics जो है हमारे पास उन पर आ जाते हैं. सो हमारा जो ग्रामर टॉपिक है दैट इज़ ले वैब प्रोनोमिनो. सो प्रोनोमिनो वैब क्या होती हैं? ले वैब प्रोनोमिनो आर द प्रोनोमिनल वर्ब्स और यू कैन से रिफ्लेक्सिव वर्ब्स. अब इससे आप लोग क्या समझो, जैसे कि अगर आई से आई बाथ, ठीक है, सो सिंपली मैंने कह दिया आई बाथ. बट अगर मैं कहूँ आई बाथ माई सेल्फ, सो इसमें मैं क्या कर रही हूँ? अपने ऊपर एक्शन को जो है ना इस वैसे तो इसमें भी मैं कह रही हूँ कि हाँ मैं बात करती हूँ, बट इसमें मैं जो फोर्स लगा रही हूँ दैट इज़ बाय यूजिंग दिस माई सेल्फ. ठीक है. सो ऐसे वर्ब को इस वर्ब को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब. ठीक है. इससे हमारा क्या इंडिकेट होता है? दैट सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन हिमसेल्फ और हर सेल्फ. ठीक है. अब जब फ्रेंच के अंदर हम रिफ्लेक्सिव वर्ब जब रिफ्लेक्सिव वर्ब जब हम फॉर्म करते हैं, देखो आई बात ये तो हो गई वर्ब. ठीक है. बट अगर मैं कहूँ माई सेल्फ, तब ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड ये हमारी तब बन जाएगी रिफ्लेक्सिव वर्ब. तो रिफ्लेक्सिव वर्ब का तो कुछ चेंज होता नहीं है फ्रेंच के अंदर. हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है वो हम देखते हैं. देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है फ्रेंच में. य के लिए होता है म, ट्यू के लिए होता है त, इल और एल के लिए होता है स, नू के लिए सेम नू, वू के लिए वू, इल और एल प्लूरल वाले के लिए भी स. ठीक है. सो अगर मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल लेती हूँ लावे वर्ब का. लावे इज एन जो है हमारी लावे वर्ब, इट इज़ एन रिफ्लेक्सिव वर्ब. ठीक है. अगर मैं कहूँ स लावे इज अ रिफ्लेक्सिव वर्ब, लावे इज अ सिंपल वर्ब. ठीक है. मैंने गलती से पहले कह दिया था. तो स लावे अगर मेरे को कॉन्जुगेट करना है तो मैं य ट्यू इल एल के केस में देखती हूँ पहले. तो लावे वर्ब को मैं कॉन्जुगेट कर दूंगी. ठीक है. love now it's turn to put the subject reflexive pronoun. तो ज के साथ आएगा म, ट्यू के साथ आएगा त, इल के साथ स और एल के साथ स. ठीक है. वैसे ही अगर हम बात करें नू वू के केस की, नू वू इल और एल जो कि दोनों सेम होने वाले हैं. सो इसके साथ आएगा हमारा लावो, इसके साथ लावे एंड इसके साथ लाव. ठीक है. सो यहाँ पर हमारा सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा नू, यहाँ पर हमारा वू एंड यहाँ पर स.
ठीक है। सो ऐसे हमें जो है रिफ्लेक्सिव वर्ब और प्रोनोमिनल वर्ब्स जो है कॉन्जुगेट करनी होती हैं। वैसे यू कैन डू सलावे विच वी हैव डन, सरलेवे ऑल्सो, सरलेवे मीन्स टू गेट अप, सरासे ऑल्सो इट मीन्स टू शेव, सप्रोसेलेदो मीन्स टू ब्रश वंस टीथ, ठीक है। सो देखो जितने भी ये वर्ब जो स के साथ हैं ये इंडिकेट करती हैं दैट द एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है, ब्रशिंग हो रही है हमारी, गेटिंग अप हो रहा है, दे आर डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई प्रोनोमिनल वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव वर्ब, ठीक है। Usage of body parts with the reflexive verb involves always the definite article with the body part and not possessive adjective. अब आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, जब आप बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हो विद द रिफ्लेक्सिव वर्ब, तब आप सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करोगे, तब आप ये पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ आई वॉश माई हैंड्स, ठीक है, आई वॉश माई हैंड्स, सो मैं je me lave मीन्स आई वॉश माई सेल्फ, ठीक है, je me lave में माँ नहीं कह सकती मैं, आई हैव टू यूज़ द ले, ठीक है, ले डेफिनेट आर्टिकल मेरे को यूज़ करना है एट द प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, एंड उस ले का ही मतलब हमारा माय हो जाएगा, ठीक है। देर आर सम अदर रिफ्लेक्सिव वर्ब गिवन ओवर हेयर, यू कैन रीड देम एंड ट्राई टू कॉन्जुगेट देम, ठीक है। सो दिस इज यू हैव टू ट्राई, ठीक है। अब हमारा जो एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज सलावे का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्जुगेट करके दिखा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इन द नेगेशन ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब्स, ठीक है। नेगेटिव कैसे फॉर्म होता है हमारा प्रोनोमिनल वर्ब के साथ, ठीक है। सो जो नेगेशन होता है प्रोनोमिनल वर्ब्स में, इट इज डन बाय पुटिंग द न और पा आगे लगाना है हमें इन द कॉन्जुगेटेड वर्ब, ठीक है। कॉन्जुगेट जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ यमलाव, सो म के आगे हमारा लग जाएगा न एंड लाव के पीछे लग जाएगा पा, सो य न म लाव पा, तो ये ऐसे हमारा नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर ले रखा है लेवे वर्ब का, ठीक है। लेवे वर्ब अभी अभी हमने देखी थी, लेवे का मतलब होता है टू गेट अप, ठीक है। सो लेवे वर्ब में देखो य न म लाव पा, त्यू न त लाव पा, इल न स लेव पा, nu न nuvo levo pa, nu न nuvo levo pa, vu न vu leve pa, il न se leve pa, elle न se leve pa, ठीक है। सो दिस इज यू हैव टू डू, ठीक है। अब बारी आती है हमारी द इंटेरोगेशन विद प्रोनोमिनल वर्ब्स। वैसे तो हमने इंटेरोगेशन सीख लिया है, बट प्रोनोमिनल वर्ब के साथ वो कैसे होगा इंटोनेशन, जैसे इंटेरोगेशन। सो फर्स्ट वे हम देखते हैं इंटोनेशन का, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम इंटोनेशन क्या होता है, जिसमें हम अपनी साउंड को थोड़ा सा ना क्वेश्चनिंग डाल देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ इल लाव इल मोज il mange la baguette, ठीक है, मैं ये कहूँ il mange la baguette, ये तो हो गया हमारा सिंपल। अगर मैं कहूँ il mange la baguette, तो ये हमारा क्वेश्चनिंग हो गया। सो वैसे ही हम ऐसे भी कह सकते हैं il se lave tous les matins, मीन्स ये बात एवरी मॉर्निंग, सो ये हमारा क्वेश्चनिंग हो गया, हम अपनी अपनी टोन चेंज करें, ठीक है। वैसे ही हम इसका लगा के भी इसको कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़े थे अबाउट द इंटेरोगेशन। हम कहेंगे जैसे कि अगर मैं कहूँ नू नू प्रोमनो ससुआर मीन्स वी हैव अ वॉक दिस इवनिंग, अगर मेरे को इसको ऐड करना है तो सिंपल इसका ऐड हो जाएगा एंड हमारा ये इसको नूनो प्रोमनो पास ससुआर, बट द थिंग इज क्वेश्चन मार्क हमेशा पीछे लगना चाहिए, ठीक है। वैसे ही इन्वर्जन, इन्वर्जन कैसे होगा, अब जो हमारा सब्जेक्ट है जैसे कि ट्यू द सॉरी let me just do it again, so tu the lev, tu the lev a Caesar, ये चीज़ मैंने कही है, ठीक है। अब इसका अगर मेरे को इन्वर्जन करना है, इन्वर्जन हमारा कैसे होगा, जस्ट लुक एट इट। सो हमारा ओके, सो हमारा जो इसका इन्वर्जन होगा वो कैसे होगा, जो हमारा त्यू है वो चला जाएगा लेव के बाद, ठीक है, लेव के बाद चला जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो लेव के बाद अगर ये चला जाएगा सो तो रह जाएगा आगे लेव
हमारा यहाँ पर एंड त्यू यहाँ पर आ गया, बीच में इनके हाइफन लग जाएगा एंड पीछे जो एज इट इज सेंटेंस है वो लग जाएगा एंड विद द क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज समथिंग विच वी डू इन द इन्वर्जन। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।